جیت کے لائق خداوند ہے. ہم اس کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں. کام میں لکھے ہو جاتا ہے تو سنجیدگی سے اپنے قدم اٹھائیں. زبور میں لکھا ہے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں توجہ ہو آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ ساک گبانی فرما اور گایا جسے تو نے اپنے لیے نوافہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. سوری نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اے لشکروں کے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں پھر متوجہ ہو آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ اور اس ساک کی نگہبانی فرما اور اس پودا کی بھی جسے تیرے دہنے ہاتھ نے لگایا ہے اور اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے کیا ہے. پریز دی لارڈ. خداوند کے اس کلام کو ہم جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اور یہ مجھے خداوند نے آج اس گروپ کے لیے کلام کیا ہے کہ اس گروپ کو جو خداوند نے لگایا ہے اور خداوند نے ہمیں جو سٹارٹ مضبوطی کا کلام ہے وہ خداوند نے کیا ہے کہ تو نے اپنے مضبوط کیا. پریز دی لارڈ. اب ہم اوپننگ پریئر جو ہے سارا کے ساتھ ملیں گے اور اب سارا آپ پریئر کرو. سارا جی ٹھیک ہے. باپ بیٹے رکس نام امین. اب آپ کو شروع کرتا ہے موقع ہم کو حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاک کلام کو پڑھنے لگا پوزیشن کرنے لگا ہم دل کی شدہ کرتے ہیں. پوری پیمنٹ کے ہولڈ میں آپ کہتے ہیں تو کسی طرح کی ٹپشن ہے جتنے بھی گیت گئے آپ کے حضور کو بولنا آپ کو پسند ہے جن دعائیں شیئر کریں آپ کے حضور کو بولنا آپ ان کا جو ہمیں ڈریس ملے باپ ہم جو بکلام پڑھے ہمارے بات سے برکت ہے آپ سب کھاتا ہم سب کو تندرست وقت دیجیے گا. گیت گانے لوگوں کو آپ کھاتا ہم جاتے ہم سب کھاتا ہم سب کو تندرست وقت دیجیے گا. ہم سب کے ہاتھ ہے آپ سب کو تندرست وقت دیجیے گا. میرے خدا کچھ نہیں قبول کیے اس میں ناصری کے نام ہے آمین. پریز دی لارڈ. خداوند کے کلام میں لکھا ہے دانیال نبی اس کا 12 باب رائے لیکن اے دانیل تو ان باتوں کو بند رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک کے لیے مہر کر دے. وہ تیرے اس کی تحقیق و تفتیش کریں گے اور دانش افزون ہوگی. آمین. پریز دی لارڈ. خداوند نے آخری وقت کے لیے کہا تھا کہ میں اپنی جو علم کی روح ہے وہ کروں گا اپنی جو آخری زمانہ کے لوگ ہوں گے ان پہ دے سوری نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. رانی باجی آپ کر لو کنٹینیو پلیز. Hello, praise the Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. آئیں خداوند کا شکر ادا کریں. خاص طور پر ہم نیٹ کے لیے خداوند سے التجا کریں گے خداوند سے نیٹ کی پرابلم کو دور کریں تاکہ اس کے لوگ دل سے اور خوشی کے ساتھ اس کی حضوری میں آ سکیں اور اس کی حضوری کو انجوائے کر سکیں. آئیں خداوند کا شکر ادا کریں اور ہم ساری نیٹ کی پرابلم کو یسوع مسیح کے نام سے دور کریں گے اور بائنڈ کرتے ہیں اور کمانڈ کرتے ہیں کہ یسوع کے نام سے ساری نیٹ پرابلم یسوع کے نام سے جاتی رہے. ان دا نیم آف یسوع کے نام سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں
Yes Lord, hallelujah, praise the Lord. और खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इकट्ठा किया, उसने हमें वो हमें अपनी हजूरी में लेकर आया ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, हम उसकी बादशाही को वसअत दे सके। ये उसकी मेहरबानी शफकत है कि आज हम एक दफा फिर हम एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हम एक रूहानी खानदान है, हम मसीह के घराने के हैं, हम मुकद्दस कौम और शाही कानों का फिरका है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपनी प्रस्तिश के लिए एक दफा फिर हमें अपनी आवाज को सुनने के लिए हमें एक दफा फिर हमें इकट्ठा किया है। आए खुदावन का शुक्र अदा करेंगे और इसी तरह हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं सारे माहौल के लिए, सारी प्रस्तिश के लिए, सारे कलाम के लिए, खुदावन का और तमाम जिंदगियों के लिए, सारे माहौल के लिए हम खुदावन का ही शुक्र अदा करते हैं। आए खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हम अरूसा से कहते हैं कि खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए जो भी गीत खुदावन ने उनके दिल में रखा है वो हमसे हमारे साथ उसको शेयर करें। अरूसा के साथ हम वर्शिप में शामिल होंगे। हेलो, बॉबी के साथ, बॉबी हमारे साथ है। Hello. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है। दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। खुदा दे ना दिए जुबां, खुदा दे ना दिए जुबां, तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उस दी गावांगा। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उस दी गावांगा। ए गल यहोवा दे हजूर, ए गल यहोवा दे हजूर, हाँ वध के हुंदी है मंजूर, हाँ वध के हुंदी है मंजूर। ते डगे बच्चे उगते आ
सब खुरवा लेते सिंगदा ते डगे बच्चे फूकते आहून सब खुरवा लेते सिंगदा ते बूझे दिल ऐ वेखण गे ते बूझे दिल ऐ वेखण गे खुश होवण मारे खुशी दे खुश होवण मारे खुशी दे जो ढूंढ दे राया हवादा दिल जिंदा होवे ओ नादा जो ढूंढ दे राया हवादा दिल जिंदा होवे ओ नादा रब सचमुच उस दी सुनदा है रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. श्रेया है. बाजी नेक्स्ट वर्शिप मैं शुरू करूं? हाँ जी. खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा. खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा. उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो. खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो. वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है. और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है. जो उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है. वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा. उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो. खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो. पहले उसकी बादशाहत
उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावंद शुक्र करते हैं ते हुन असी नेक्स्ट वर्शिप ब्रदर बॉबी हुनां ने मिलके करांगे। जी प्रेज लॉर्ड। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू रब आप आया, मेरी मदद नू रब आप आया। जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरां नू देवे खलारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा न कदी बुलावे, तेरे रब नू निंदर भी ना आवे। इसराइलां दियां रखदा ताड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। आपे ही तेरा यहोवा रखवाला, आपे ही तेरा यहोवा रखवाला। तेरे ऊते ओछा करने वाला,
شکریوں سے دا ہر دم گزاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں دین سورج نہ تینوں ستاوے راتی چن وی نہ کچھ دکھ پہنچاوے خوف کھاواں گا نہ وچ اجاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکاراں تیرا رب تینوں آپے بچاندا تیرا رب تینوں آپے بچاندا ساری بدیاں تو تینوں چھڑاندا تیری جندڑی دی رکھدا تاڑا مدد لئی میں کس نوں پکاراں اکھیاں چکنا میں ول پہاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکاراں تیرے راہ وچ یہوہ تعالی سدا ہووے گا او تیرا رکھوالا میں تے رب نوں ہی ہر دم پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں پریز لارڈ ہیلیلویا ہیلو پریز دی لارڈ تھینک یو بوبی گاڈ بلیس یو یقیناً ہماری مدد جو ہے ہماری جو بھی ضرورت ہے ہماری جو بھی نیڈ ہے ہماری مدد جو بھی ہے وہ ہمارے خداوند کی طرف سے آتی ہے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے ہاللویہ پریز دی لارڈ اسی طرح ہم آگے سرافین کے ساتھ ورشپ میں شامل ہوں گے میں سرافین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سرافین آئے اور آگے ورشپ میں ہمیں لیڈ کریں ہلیلویا پریز دی لارڈ خدا کے نام کو جلال دیں گے میرا زور بن جا اے خداوند خدا میں بھی نال تیرے سدا چلدا رواں میرا زور بن جا اے خداوند خدا میں بھی نال تیرے سدا چلدا رواں اے یہوہ خدا سب دا تو آسرا اے یہوہ خدا سب دا تو آسرا میرا زور بن جا اے خداوند خدا میں بھی نال تیرے سدا چلدا رواں شام سویرے تے تو ربا منگنا بس اے دعاواں کر دے میرے اُتے ربا اپنے کرم دیاں چھاواں شام سویرے تے تو ربا منگنا بس اے دعاواں کر دے میرے اُتے ربا اپنے کرم دیاں چھاواں اور وے نال میرے پاک روح دا مسا اور وے نال میرے پاک روح دا مسا میں بھی نال تیرے سدا چلدا رواں میں بھی نال تیرے سدا چلدا رواں اے یہوہ خدا سب دا تو آسرا اے یہوہ خدا سب دا تو آسرا
मेरी जिंदगी विचों कर दे गम दे दूर हनेरे, सारे अमल गुनाहां वाले कर दे माफ तू मेरे, मेरी जिंदगी विचों कर दे गम दे दूर हनेरे, सारे अमल गुनाहां वाले कर दे माफ तू मेरे, सदा मेरे सिर ते रवे करमां दी छां, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवां, ओ मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवां, ऐ यहोवा खुदा सदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सदा तू आसरा, मेरा जोर बन जा ऐ खुदा मन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवां, मेरा जोर बन जा ऐ खुदा मन खुदा, ऐ यहोवा खुदा सदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा Hallelujah. Praise the सदा Lord. तू Thank you, Sister आसरा। Sarafin. God bless you. लेकिन हमारा Hallelujah. खुदावंद ही हमारा जोर है, हमारी कुव्वत है। Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद का शुक्र करेंगे। कुदूस कुदूस मेहरबान जलाली खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं दिल की तागराइयां से। खुदावंद यीशु जी तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इन खूबसूरत लम्हात के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपकी हजूरी के लिए शुक्रगुजार हैं। आपके तख्त के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद यीशु जी आपकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार हैं। यहोवा जरी है खुदावंद यीशु जी, तूने हमें संभाला हुआ है। खुदावंद यीशु जी तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारी कुंबक है, तू हमारी सिपर है, तू हमारी ताकत है, तू हमारा भरोसा है। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद सारी प्रस्तिश में है खुदावंद तू हमारे शामियों हाल रहा है, इसके लिए शुक्रगुजार है। ऐ खुदावंद आगे के ऐ खुदावंद कलाम के लिए ऐ खुदावंद तू हमें तैयार कर। ऐ खुदावंद यीशु जी, ऐ खुदावंद नेट के सारे प्रॉब्लम को ऐ खुदावंद आपके हाथों में दे देते हैं खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद सारे डिवाइसेस को ऐ खुदावंद यीशु जी, ये सारा नेट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। ऐ खुदावंद तू बहाल कर ऐ खुदावंद यीशु जी। और ऐ खुदावंद बाजी को ऐ खुदावंद आपके सुंदर कदमों में लाते हैं, आपकी पाक सलीब के नीचे लाते हैं खुदावंद, सर से लेकर पांव के तलवे तक है खुदावंद उनको तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। ऐ खुदावंद जब वो है खुदावंद जो कुछ वो बोले हैं खुदावंद तेरे पाक रूह की हदायत से बोले। और ऐ खुदावंद हमें सुनने वाले कान, अकल, बूझ, सोच, समझ, दनाई और पाक रूह का फहम मुहैया करना, ताकि हम आज के मैसेज को रिसीव करने वाले बन सके हैं खुदावंद यीशु जी। तो उससे मिन्नत करते हैं खुदावंद, आगे की सारी मीटिंग का कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद नेट को सारे ऐ खुदावंद प्रॉब्लम को यीशु के नाम से डांटते और हुक्म देते हैं। ऐ खुदावंद यीशु के नाम से ऐ खुदावंद नेट बहाल रहे यहोवा यरी। ऐ खुदावंद यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ। ऐ खुदावंद सब कुछ आपके कदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सरफीन, वफा, अंजना और सुरैया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और खुदावंद का मसा आपके पर होता रहे और आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस ग्रुप के लिए बाइस से बरकत बनती रहे। और इसी तरह अपने फैमिली के लिए भी और इस ये जो हमारी छोटी सी फैमिली है ग्रुप की सूरत में, इसके लिए भी बोझ लेके, दर्द लेके इसी तरह दुआएं करती रहें और अपने आप को इसी तरह पेश करते रहें। प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र हो। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे।
खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है बाप, इस रोटी को और इस पानी को खुदा जो के अब तेरे लहू में, तेरे बदन में तब्दील हो गया खुदा, जब इसको हम लें तो खुदा यीशु के नाम से हमारे अंदर से खुदा यीशु जो बातें तुझे पसंद नहीं है, जो काम हमारे तुझे पसंद नहीं है, जिनसे तुझे नफरत है खुदा, जिनसे तुझे घिन आती है खुदा, यीशु के नाम से वो गलासत वाले काम यीशु के नाम से हमारे बदन के अंदर से खुदा, हमारे घरों के अंदर से खुदा वो यीशु तेरे नाम से निकल जाए, यीशु तेरे नाम से वो खत्म हो जाए, उनका सत्यानाश हो जाए खुदा ये जड़ से खत्म हो जाए। कहीं पे भी खुदा हमारे बदनों के अंदर से खुदावंद शैतान को खुदावंद जलाल ना मिले। खुदावंद यीशु तू हमारे बदनों का मालिक है, तू खुदावंद इन बदनों का खरीदने वाला है। खुदावंद यीशु तू ही इन बदनों को इस्तेमाल कर। खुदावंद हमारे जिस्म का कोई भी अज़ा कहीं हम सोचों में या ख्यालों में या कहीं हमने इन हाथों को इस्तेमाल किया, इन पाँवों को इस्तेमाल किया शैतान के लिए, खुदावंद हमें माफ कर यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। और हमारे अंदर से वो सारी गंदगी नापाकी कहीं पे भी हमने की है खुदावंद तेरे यीशु नाम से, तेरे इस लहू से खुदावंद जब इस तेरे बदन को लें तो खुदावंद वो जड़ से खत्म हो जाए। खुदावंद यीशु हम नहीं चाहते खुदावंद, हम इन हवाओं में इन फजाओं में इकरार करते हैं कि हमारा शैतान से, इब्लीस से, उसकी फौजों से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई हमारा उसके साथ लिंक नहीं है। खुदावंद हम तुझे प्यार करते हैं खुदावंद, हम तुझे अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं खुदावंद खुदा। हम तेरे सिवा किसी को पूजना नहीं चाहते, किसी से वैसी मोहब्बत नहीं रखना चाहते खुदावंद। हम इकरार करते हैं कि खुदावंद ये जो दुश्मन की फौजें हमारे पीछे लगी हुई हैं खुदावंद, वो हमें तुझे तेरे पास आने नहीं देती, तुझे खुदावंद खुदा खुश नहीं करने देती। वो चाहती हैं कि हम अपने खुदा को नाराज करें खुदावंद, ताकि उसका कहर हमारे ऊपर बढ़ के खुदाम यीशु के नाम से उन सारी दुश्मन की फौजों को खुदाम तू हमारी जिंदगियों से खत्म कर दे, उनका नामो निशान मिटा दे खुदाम यीशु। तू हमें आगे पीछे से घेरे रख खुदाम, जिस तरह तू बाप इसराइलियों को खुदाम घेरे रखता था और उनके उस खैमा में रहता था खुदाम खुदा। यीशु के नाम से खुदाम बाप इसी तौर से तू हमारे बदनों के अंदर, हमारे घरों के अंदर रह, ताकि खुदाम खुदा दुश्मन की कोई भी फौजें खुदाम वो हमें देखने ना पाए खुदाम खुदा, वो हमारे खिलाफ कोई मुंह ना खोलने पाए। यीशु के नाम से उनके हाथों को काट दे, उनकी उंगलियों को काट दे यीशु के नाम से खुदावंद। तेरी ललकार से वो डरती और कांपती हुई खुदावंद हमारे घरों से, हमारे बदन के अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से। जहां कहीं बीमारी की वजह से उसने हमें जकड़ा हुआ है, हमें बंधनों में बांधा हुआ है, जहाँ कहीं खुदाम कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई गुस्सा है, कोई नफरत है हमारे अंदर खुदाम, यीशु के नाम से खुदाम वो हमारे बदनों के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए खुदाम। और तेरी मोहब्बत, प्यार, तेरी वो जो फिक्र है, तेरा मिजाज है खुदाम यीशु, वो हमारे अंदर आ जाए खुदाम। और हम खुदाम तेरे उस कद के अंदाजा तक पहुंच सके खुदाम, जिस तरह से तू हमें देखना चाहता है पाकीज़गी में खुदावंद खुदा, जिस तरह तू चाहता है कि हम तेरी कामिल मर्जी को पूरा करें खुदावंद, वही पाकीज़गी का रूह हमारे अंदर उंडेल दे। वो खुशी, वो शादमानी, वो हिकमत, वो दानिश, वो फहम, वो खिर्द की रूह वो मसलियत की रूह खुदाम, तेरे डर और खौफ की रूह, तेरी कुदरत की रूह खुदाम हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से खुदाम खुदा, जो हमें तेरी मानिंद बना दे खुदाम यीशु के नाम से खुदाम, ताकि हम उस अपने तख्त तक पहुंच सके जो खुदाम तूने हमारे साथ वादा किया है खुदाम खुदा। हम उन सीधे रस्तों पे चल निकले खुदाम, जिन की तरफ हमें तू लेके जाना चाहते हैं खुदाम। हमारी जिंदगियों में कहीं से भी खुदावंद इब्लीस को कोई सुराख ना मिले खुदावंद, यीशु के नाम से तेरे पाक खून की कवरिंग में दे देती हूँ एक एक जान को खुदावंद, जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो नहीं आए खुदावंद खुदा, और जो इसको सुनेंगे बाद में खुदावंद, उन सबको यीशु तेरे
लहू में छुपा देती हूँ। सबके घरों को खुदा बुनियादों से लेके छतों तक खुदा एक एक चीज को, एक एक इंच को, हवाओं को, फिजाओं को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। कोई भी बदी की कुव्वत, कोई नापाकी की रूहें हमारे घरों में रहने ना पाए, ठहरने ना पाए। हमारे घरों के ऊपर, हमारी हवाओं में, फिजाओं में तेरा मसा ठहरा रहे खुदा दुआ का मसा मांग लेती हूँ, प्रस्तश का मसा मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। हमारे घरों में खुदावंद अबलीस का कोई काम होने ना पाए हमारे घरों से। खुदावंद खुदा तेरी प्रस्तिश की, तेरे गीतों की खुदावंद आवाजें गूंजे खुदावंद खुदा, ताकि दुश्मन की फौजें हमारे घरों से दूर रहें, वो डरती रहे, वो कांपती रहे, वो उनको आग लगती रहे कि यीशु तूने हमें घेरा हुआ। तेरे आग के सतून को अपने घरों के चौगिर्द, अपने चौगिर्द मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। जहां जहां हम जाएं खुदावंद तेरी हजूरी हमारे साथ जाए। जहां जहां जिस चीज से मिले हमारे मुंह से तेरा पाक कलाम जो है वो निकले, ताकि खुदा दूसरों को बरकत मिले खुदा, ताकि हमारे वसीले से दूसरों के बंधन खुले खुदा, दूसरे आजाद हो। जिसके लिए खुदा तूने हमें पैदा किया, हमें बरकत देने के लिए खुदा तूने पैदा किया, हमारे वसीले से ना सिर्फ हम, हमारी फैमिलियां बरकत पाएं, बल्कि जहां जहां खुदा हम जाते हैं खुदा तेरी हुजूरी साथ हो। जिस तरह खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि यूसुफ के साथ साथ रहा, जहां भी वो गया, वो जेल में गया खुदा तो उसके साथ था। वो खुदा नौकर बना, खुदा तू वहां भी उसके साथ था। खुदा वो उसको तूने हाकम बनाया, तो वहां भी उसके साथ था खुदा। उसी तौर से खुदा जहां कहीं भी हम जाए खुदा तेरी हुजूरी, तेरा मसा खुदा तेरी खास, तेरी स्पेशल अनाइंटिंग खुदा हमारे ऊपर ठहरी रहे खुदा यीशु के नाम से, ताकि खुदा हम तुझ में जोर पकड़ते जाए, हम तेरे खुदा वो जबरदस्त सुरमा बन जाए खुदा यीशु के नाम से, ताकि दुश्मन की फौजें खुदावंद हमसे डरे, हमसे कांपे, और खुदावंद हमारे खुदावंद रुपए पैसे को, हमारे बदनों को वो छोड़ के भाग जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद ये मसा खुदावंद हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर ठहरा रहे यीशु के नाम से खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद दुश्मन कभी भी हमें गिराने ना पाए खुदावंद खुदा, हमें हराने ना पाए। हम फतहमंद जिंदगियां जो है वो बसर करे, और खुदावंद फतह हासिल करके अबलीस के ऊपर, शैतान के ऊपर खुदावंद उसकी फौजों के ऊपर गलबा पाके खुदावंद अपने तख्त तक पहुंच सके यीशु के नाम से खुदावंद, ताकि जब यीशु तू आए अपनी दुल्हन को लेने खुदावंद, अपनी खुदावंद खुदा कबूतरी को, नाजी को लेने, तो खुदावंद हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों खुदावंद खुदा। हम वो तेरा जबरदस्त खूबसूरत लश्कर बन जाए खुदावंद खुदा, जिसको तू लेने आ रहा है यीशु के नाम से खुदावंद। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ईमान से इस पानी को पिए और रोटी को लें। ताकि हमारी सारी गंदगी, नापाकी हमारे अंदर से जाती रहे, हम पाक और साफ बनते जाएं, क्योंकि ये कोई एक दिन में नहीं होना। रोज 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 हम कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं खुदावन जो है हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, जो बातें उसको पसंद नहीं है, वो साफ कर रहा है, सारे दाग धब्बे मिटा रहा है। प्रेज गॉड। हम जब आते हैं मीटिंग में, तो कौन कौन है जो मतलब खुश होके आता है कि आज मेरी सफाई हो रही है। जैसे मैं कहूंगी कि ज्यादा मैं इतना नहीं सबके बारे में नहीं जानती, लेकिन सुरैया का मुझे पता है। उसको पसंद है घर की एक एक चीज साफ हो, तरतीब से पड़ी हो, कोई भी कहीं भी कोई बेतरतीबी ना हो। तो हम जब इस जगह पे आते हैं, खुदावन के पास आते हैं, तो हमारे बदन की, हमारे जहनों की, हमारी सोचों की जो वो सफाई है वो हो रही होती है। तो किसको अच्छा लगता है कि हमारी सफाई हो, हमारे अंदर से बेतरतीबी निकले, और वो खुश होता है कि हम जा रहे हैं खुदा उनकी हजूरी में। मैं बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि सफाई में जैसे कह लें अपने घर की या अपनी अंदर की कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उस तरह से, जिस तरह से मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि मैं करना चाहती हूँ, या अपने अंदर की कह लें या अपने घर की, उस तरह से मैं कर नहीं सकती,
कि कुछ काम जो है मेरे से होते नहीं है, पता नहीं बूढ़ी हो गई या क्या है। तो लेकिन जब मैं खुदावंद के पास जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा खुदावंद ये चीजें हैं जो मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन खुदावंद तू कर सकता है, तू मेरी मदद कर सकता है, तू अपने फरिश्तों को भेज सकता है ना, कि मेरी मदद करके मैं ये भी कर लूं, ये भी काम अभी रहता है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बहुत से काम हैं, हम घर में भी कह लें जैसे, या अपने बदन के अंदर से, सोचों के अंदर से, तो जब हम खुदावंद के पास जाएंगे और हमें मसा मिलेगा, नया जोर मिलेगा, तो हम वो काम कर सकेंगे। किसी ने सोचा है कभी जब आप आते? ओके, हाँ जी, वफा ने कहा है कि मैं डेली, तो मैं बहुत ऐसा रोज जब दुआ करती हूँ या काम कर रही होती तो मैं कहती हूँ वो अभी यहाँ की भी सफाई नहीं, मैं वो मेरे से हो नहीं रही, मैं अकेली कर नहीं सकती, तो खुदावंद तू मेरी मदद कर। तो मैं ऐसे रोज दुआ करती हूँ कि खुदावंद तू मेरी मदद कर। तो लेकिन जब मैं यानी ये तकरीबन हमें 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये ग्रुप को शुरू किए हुए। तो जैसे सुरैया को पता है, सेड्रिक को भी पता है कि मैं बड़ी बीमार ही रहती थी। लेकिन जब से ये खुदावंद के फ़ज़ल से ग्रुप शुरू किया, तो उस तरह से मैं कभी बीमार नहीं पड़ी, नहीं तो मैं बिस्तर पे पड़ जाती, ज़रा-सा मुझे कुछ हो जाता था, तो मैं क्या ले हफ्ता-हफ्ता, 2-2 हफ्ते ठीक ही नहीं थी होती और बिस्तर पे पड़ी रहती थी। लेकिन जब से ये ग्रुप शुरू किया है, खुदावंद की हुज़ूरी में रोज़ ही ठहरती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक ताकत आ गई, एक नया जोर आ गया है। बीमार भी होती हूँ तो मैं मतलब जैसे कह लें काम जो है, जो अपने जैसे कह लें थोड़ी रूटीन के जो है, वो करके मैं फिर बैठती हूँ और जैसे कह लें जो कि मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन खुदावंद के फ़ज़ल से वो मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद जब रोज़ हम यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो आग जो है खुदावंद की आती है, खुदावंद पाक रूह की आग आती है। वो हमें नया ज़ोर, नई ताकत देती है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन खुदावंद जो है हमें रोज़ एक जैसे होता है ना चार्ज करता है, जैसे फ़ोन है सबके पास तो उसको चार्ज करते हैं, वो स्विच लगाते हैं बैटरी। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हम चार्ज हो जाते हैं। हमारे अंदर काम करने की कोई वो एक कह लें कुव्वत नहीं होती, लेकिन हम खुदावंद के ज़ोर से वो अपने जो सारे काम हैं वो करते जाते हैं। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी, जैसे कल जो थोड़े बाद में रह गए थे, उनको पता है कि मेरी कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, एक बड़ी वीक फ़ील कर रही थी। लेकिन खुदावंद के फ़ज़ल से मैंने यानी मीटिंग को किया, लेकिन एक जैसे कह लें मेरी बॉडी जो थी वो वीक थी, लेकिन रूह जो थी वो ताज़ा थी। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर आएँ और ये जो रोज़ हम ताकत लेते हैं, कहीं आप लोग उससे रह ना जाएँ। चार्ज जो है एक मसीही को रोज़-रोज़ होना ये ज़रूरी है ना? नहीं तो क्या है हम अ, यानी क्या कहते हैं, जो कमज़ोर होंगे तो दुश्मन जो है हमारे ऊपर हमला जो है वो कर देगा, वो ज़ोरावर है, वो हमें गिराने की पूरी कोशिश करता है। प्रेज़ गॉड, लेकिन खुदावंद हमें ज़ोर देता है, ताकत देता है। तो मेरा ईमान है कि आप जब आते हैं तो आप खुशी से आते हैं, क्योंकि खुदावंद आपके दिलों को देख रहा है। हम रोज़-रोज़ यही सीख रहे हैं, है ना? कि खुदावंद कई दफ़ा हम अ, शायद किसी को दिखा रहे होते हैं, हम नहीं मतलब कुछ लोग जो है इस तरह के दिखाने के लिए दुआएँ कर रहे हैं क्या, लेकिन हम किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम अपने खुदा को, अपने बाप को खुश करने के लिए या उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए या अपने दूल्हे की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए रोज़ उसके पास, उसके कदमों में आते हैं, बैठते हैं, है ना? तो इसलिए खुशी से आया करें। जैसे दाऊद क्या कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, है ना? तो हम भी खुशी से आएँ ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। ओके जी, हम पढ़ रहे हैं मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा चैप्टर और उसकी चौथा जो कलीसिया है उसके बारे में, जो थोतेरा की जो कलीसिया है, जो चर्च है,
اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے ساتھ محض سشیلا ہے اور اردو میں سونیا شاید یا سنیا ہے نا ریڈنگ کے لیے. میرا نام ہے لیکن نیٹ پرابلم ہے تو کوئی اور کر لے. کنزا جی. اگر willing ہے تو اس کو بائبل ریڈنگ پسند ہے، پوچھنا اس سے. اوکے جی. ہاں جی. ہم نے پڑھا تھا میرا حال 23 آیت تک پڑھا تھا. مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا چیپٹر 18 آیت سے 23 آیت تک ہم نے کل پڑھا تھا. تو آج آگے پڑھتے ہیں 24 آیت سے 29 آیت تک، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کو آج یہ پورا ہو جائے گا یا نہیں. میرا ایمان ہے کہ ہم آج کر لیں گے اس کو. جی کنزا آپ پڑھیں گی؟ انجنا اور کنزا میرا. جی ہم کل ہاں جی، ہم praise the Lord. ہاں جی آپ نے نکال لیا دوسرا چیپٹر مکاشفہ کی کتاب، اس کی جو 23 آیت ہے دوسرا چیپٹر 24 آیت سے آپ پڑھنا آخر تک، یعنی 29 آیت تک. اوکے. جی نکال لیا. ہم نے کل تھوڑا سیکھا 23 تھا. ہاں جی پڑھو. 23 سے لے کے 29 تک. ہاں جی. ہاں جی. اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. مگر تم تو تیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو. یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آمین. آمین جی. گاڈ بلیس یو کنزا. ہم نے کل تھوڑا سیکھا تھا یہ جو ابھی 24 آیت میں ہم نے پڑھا کہ یعنی جو اس کی تعلیم پہ چل رہے ہیں. یعنی کل ہم نے سیکھا تھا کہ جو ایزبل کی جو روح تھی وہ اس کلیسیا میں کام کر رہی تھی، یعنی جس کو انگلش میں جیزبل کہتے ہیں، اور یہ بھی گمراہ کرنے والی اور خدا کے خادموں کے خلاف یہ کام کرتی ہے. اور یہ اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہم نے سیکھی تھی کہ یہ بھی کیا کرتی ہے، غلط تعلیم جو ہے کیا کہتے ہیں غلط تعلیموں کی طرف جو ہے خدا ان کے لوگوں کو لگاتی ہے. یہ جو اسپرٹ ہے نا، یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ یعنی اخگب کی بیوی تھی پرانے عہد نامے میں، اور اس نے کیا کیا تھا کہ جھوٹے خط لکھے تھے. یعنی اس جو ایلیا تھا اور جو باقی اس کے جو اس کا تھا نبوت جو تھا اس کے خلاف اس نے خط لکھے تھے اور اس کو مروا دیا تھا. اور پھر اس نے جو خداوند کے نبی تھے ان کو بھی مروا دیا تھا، ہے نا. تو اس نے جھوٹی باتیں خدا کے لوگوں کے خلاف یہ کرتی ہے یا خدا کے خادموں کے خلاف لوگوں کو ابھارتی ہے. تو اس کے یہ ایک جیسے کہہ لیں اس کا کام ہے یہ جذبل کا. تو یہ جھوٹی باتیں کرتی ہے اور
خدا کے لوگوں کے خلاف کرتی ہے اور جھوٹی جو تعلیم ہے یا غلط تعلیمیں جو ہے وہ پھیلاتی ہے. یہ اسپرٹ جو ہے، یہ جازبل کی اسپرٹ جو ہے، یہ کہہ لیں کہ جو اس کی یہ بادشاہ کی بیوی تھی، یہ ایزبل جو تھی، اور یہ اپنے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے نا، یہ میں کوئی اپنے سے یہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو مشورے دیا کرتی تھی، اور اس کا جو شوہر ہے ان مشوروں پہ عمل کیا کرتا تھا. اور اس نے ایک پھر کل ہم نے حوالہ پڑھا تھا کہ یہ کیا کرتی ہے، اس کو یعنی اس کو کہتی ہے کہ تو جیسے کہہ لیں خوشی منا یا بہلنے کے لیے اس نے اس کو کہا کہ تو فکر نہ کر، میں سب کچھ کروں. تو یہ کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کے اوپر کہہ لیں کہ حکومت کرتی ہے یا حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ میں ہی جیسے کہہ لیں، یا کسی چرچ میں یہ کام کر رہی ہے، تو یہ جس بندے کے اندر یہ کام کر رہی ہوتی ہے اسپرٹ، وہ کیا کرتی ہے، پورے چرچ کو چاہتی ہے کہ میں کنٹرول کروں، جو کچھ کروں میرے مشورے سے یہ چرچ کے لوگ جو ہیں یا پاسٹر جو ہے یہ کام کرے. تو اگر یہ گھر میں کام کر رہی ہے یا کہہ لیں بیوی کے اندر کام کر رہی ہے، تو وہ بیوی جو ہے وہ اصل میں کیا کرے گی، اپنے بندے کو، اپنے ہسبینڈ کو، شوہر کو کنٹرول کرے گی. اور جس طرح کہ یہ اپنے شوہر کو کنٹرول کرتی تھی اور پوری حکومت کو بھی کہہ لیں کہ یہ کنٹرول کرتی تھی. اس نے یعنی اس کی جو مہر تھی اپنے جو بادشاہ تھا یعنی ہسبینڈ کی، وہ لے کے خود ہی اس میں خط لکھوائے جھوٹے، اور یعنی سارا کچھ اس نے خود کیا. تو اسی طرح اگر یہ اسپرٹ چرچ میں کام کر رہی ہے، کلیسیا میں، تو وہ پورا کنٹرول کرے گی اس کو. یعنی وہ چاہے گی کہ پاسٹر بھی میرے سے پوچھ کے ہی باتیں یا اس چرچ کے جو کچھ جیسے کہہ لیں قانون بنانے یا کچھ بھی کرنا ہے، وہ اس سے بات کی جائے پہلے، یا وہ مشورے دیتی ہے. اور گھر میں بھی بیویاں اگر ایسے کرتی ہیں تو اس میں اصل میں پھر یہ جازبل کی جو اسپرٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. تو اس لیے ہمیں جو خداوند کی جس طرح کہہ لیں کہ ڈر اور خوف میں جو بیویاں رہتی ہیں، ان کو خداوند نے کہا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے ان کے انڈر رہنا ہے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر ہمارے اندر یہ والی اسپرٹ کام کریے تو ہم اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے اس میں یہ والی جو تھی یہ بھی پائی جاتی ہے. اور پھر یہ جھوٹی باتیں کرتی ہے اپنے، جیسے کہہ لیں ہو سکتا ہے ہم اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ہی، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ہم اپنے جیسے کہہ لیں رشتے داروں میں یا جہاں کہیں ہم بیٹھے، ہم اس کے خلاف ایسی ایسی باتیں کریں کہ لوگ جو ہیں جیسے کہہ لیں اس کی اس کے خلاف ہو جائیں، ہے نا. تو اس لیے یہ والی جو اسپرٹ ہے یہ غلط تعلیمیں، اور بھی اس کی بڑی کہہ لیں باتیں ہیں، لیکن ہم ایک دو پہ تھوڑی بات کریں گے. اور جو بال کی اسپرٹ تھی اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے، قربانیاں جو ہے اس کے آگے چڑھاتی. تو اس لیے یہ ایزبل کی اسپرٹ جو ہے، جو بال کی اسپرٹ ہے. اور ایک اور ہم نے تھوڑی محکل بات کی تھی جو استارا کی اسپرٹ ہے، جو ایسٹر اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، جو کہ اس کو آسمانوں کی رانی بھی، آج ہم ورسز نہیں پڑھیں گے، بس تھوڑا سا ایسے میں بات کروں گی کہ جو بال تھا اس کے آگے اسرائیلی قوم بھی جو کیا تھی، قربانیاں چڑھانا شروع ہو گئی تھی اپنے بچوں کی، ہے نا. تو بال کی اسپرٹ جو ہے وہ اپنی جیسے کہہ لیں پوجا کروانا چاہتی ہے، اپنی چاہتی ہے کہ وہ میری پرستش ہو. تو یہ جو بال کی اسپرٹ ہے وہ قربانیاں جیسے کہہ لیں کہ وہ چاہتی ہے کہ جیسے یہ فون کے ہی ہم بات کرتے تھے کہ یہ لوگ مجھے ہی پوچھتے رہے، میرے ہی پیچھے لگے رہے. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بال کی اسپرٹ ہے، جو لوگ اپنی ہی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جہاں میں جاؤں میری ہی وہ ہو. تو اس میں اصل میں کہہ لیں کہ بال کی اسپرٹ کام کر رہی ہے نا. اور استارا جو تھی اور یہ بال جو ہے، اس کا اصل میں کہہ لیں کہ جو ایک شروع ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ہم جو پیدائش کی کتاب ہے، جو پہلی کتاب ہے، جینیسس کی کتاب ہے، اس میں جو نمرود تھا وہاں سے یہ بت پرستی کہہ لیں شروع ہوئی تھی. جو نمرود تھا آگے آگے کہہ لیں، اور استارا جو تھی اس کی، اس کو بال کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، سورج کا بیٹا یعنی، ہے نا. ہم نے کل تھوڑی بات کی تھی کہ یہ مر گیا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ پریگننٹ ہوئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ جی یہ سورج کی شعاعیں میرے اوپر پڑی تھی، تو اس طرح سے میں وہ یعنی یہ بیٹا جو ہے اس طرح پیدا ہوا. تو اصل میں پھر یہ کیا ہے، سورج کا بیٹا ہے. تو اس لیے اس کو جو بال ہے اس کو یہ سب سے بڑا کہہ لیں خدا جو ہے بت پرستی میں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ آسمانوں کا خدا یہ بت پرستی میں. اور جو استارا ملکہ ہے اس کو ہم نے اس کے بارے میں حوالے پڑھے تھے کہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا تھی، آسمانوں کی ملکہ تھی یا آسمان کی ملکہ تھی، ہے نا. تو اس لیے یہ دونوں جو ہیں یہ بڑے ایک جیسے کہہ لیں کہ بت پرستی میں ان کو بڑے خدا یا وہ کہا جاتا ہے نا. تو یہ جو ہے یہ بت پرستی کرواتا ہے، یا بال یا قربانیاں جو ہیں کراتا ہے. اور استار ملکہ جو تھی اس کو یعنی سیکس کی دیوی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یا حرام کاری زنا کاری کی دیوی جو دیوی ہے یا خدا ہے اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ یعنی حرام کاری زنا کاری جو ہے وہ چرچز میں کہہ لیں یا گھروں میں لے کے آتی ہے نا. تو اس لیے یہ تینوں ہی بڑی جیسے کہہ لیں بڑی اسپرٹ ہیں، بدروہیں ہیں. تو یہ ہمارے چرچز میں کام کرتی ہیں، یہ گھروں میں کام کرتی ہیں. اور کیونکہ یہ اینڈ کے دن ہیں تو اب ان کا پھر سے ایک زور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج جو آ گیا ہے. اور استار ملکہ کا ایک جیسے کہنے کہ یہ ملکہ ہے اور اس کو ایسٹر ہے. اور جو ہم ایسٹر کہتے ہیں یہ چرچ سوری کیا ہے کہ جو ہم خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں تو اسی کے نام پہ یہ ایسٹر جو ہے وہ رکھا گیا. اس لیے ہم مسیحیوں کو چاہیے کہ ہم جو ہیں ریزوریکشن ڈے کہیں یا خدا یسوع اردو میں یعنی خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید جو ہے ہم وہ مناتے ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کریں، ویسے تو ہمارے بچپن سے کہہ لیں میں اپنی بتاؤں کہ منہ پہ وہی چڑھا ہو تو ایسٹر نکل جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم ایسٹر نہ کہیں، کیونکہ یہ وہ ملکہ ہے جو کیا ہے یہ والی جو ملکہ ہے یہ استارا جو ہے نا. تو انگلش میں اس کو ایسٹر کہتے ہیں، جو ہم ایسٹر کہلیں مناتے ہیں. تو اصل میں اس کے پیچھے یہ دیوی ہے. تو یہ کس کی یہ اس کو سیکس کی دیوی کہا جاتا ہے نا. تو اس لیے ہم یہ جو ہے جو حرام کاری کرتی ہے، جو زنا کاری کرتی ہے، ہم اس کا نام لے کے اپنے وہ جو دن ہے وہ جو ہمارا کہہ لیں کہ سب سے میں کہوں گی کہ پاک دن ہے، یعنی خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے ہے نا، تو ہم اس کو اس نام سے نہ لیں. تو اس لیے اس کو یہ جو استارا ملکہ ہے جو اس کو آسمان کی ملکہ بھی کہا گیا ہے، تو اس کی ایک یہ بھی ہے. اور یہ پھر سے کہہ لیں کہ کیونکہ دن خداوند کے جو ہیں نزدیک ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمارا آنے والا ہے، تو پھر سے اس کا ایک ویسے تو شروع سے ہی جب سے یہ یعنی شروع ہوا ہے یہ بت پرستی، اسی نے جیسے کہہ لیں بابل کا برج جو تھا ستارہ اور یہ نمرود جو تھا شروع کیا تھا. اور یہ غلط تعلیمیں وہاں سے شروع ہوئی تھی، یا بت پرستی وہاں سے شروع ہوئی تھی. انہیں یہ نمرود اور جو ستارہ دیوی تھی انہوں نے شروع کی تھی، ہے نا. تو اس لیے ہم جو مسیحی ہیں ہمارے اندر یہ بال، یہ استارہ، یہ جیزبل کی اسپرٹ جو ہے، ہمیں تھوڑی تھوڑی اس کی میں کہوں گی کہ پہچان ہے کہ یہ غلط تعلیمیں یا بت پرستی کی ہمیں طرف لے کے جاتی ہیں، یہ حرام کاری زنا کاریوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس لیے خداوند کو ان سے سخت کہہ لیں نفرت ہے. تو اس کی کوئی بھی قسم
जैसे कह लें उसके जो असर हैं हमारी जिंदगियों में आते हैं, तो खुदावन जो है वो बहुत फिर उसको कहर जो है वो होता है या नफरत करता है खुदावंद ऐसे कामों से, है ना? कि हम जब बुत परस्ती में पड़ जाते हैं या खुदावंद से ज्यादा किसी को टाइम देते हैं या हरामकारी में फंस जाते हैं, तो इसलिए वजह पीछे ये है कि ये, क्योंकि ये क्या कहता था, नमरूद जो है, ये लिखा हुआ है बाइबल में, पैदाइश की किताब में, कि ये खुदावंद के सामने सुरमा था, यानी खुदा के साथ इसकी लड़ाई थी या खुदावंद के साथ इसकी दुश्मनी थी और ये खुदावंद से लड़ता था, यानी लिखा हुआ है कि सुरमा था। तो इसलिए अब सोचें कि ये खुदावंद के साथ इसकी जंग है, तो ये हमारा किस तरह से कोई कह लें कि इसकी सुलह हो सकती है ना? या हमारा ये किस तरह फ़ायदा सा चाह सकता है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। तो इसलिए जब हम ऐसी किसी बुत परस्ती में पड़ जाते हैं, हरामकारी में, ज़नाकारी में पड़ जाते हैं ना, तो खुदावंद फिर हमारे साथ भी खुदावंद की दुश्मनी हो जाती है ना? जैसा कि हमने इस आयत में पढ़ा, ये 23 आयत जो थी कि अगर हम ज़िना करते हैं, अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फँसाता है और उसके फर्जंदों को, यानी जो उसके पीछे चलते हैं, यानी या बुत परस्ती के या हरामकारी के, तो खुदावंद क्या है, हमें भी जान से मार डालेगा। यानी जो लोग इस तरह की बुत परस्ती करते हैं, कोई भी बुत है, ये तो मैंने कह लें 2-3 बुतों की बात की है ना, बहुत से बुत हैं, हम सबको ही पता है, तो हम सब पे तो बात नहीं कर सकते, है ना? तो कोई भी बुत है, कोई भी बुत है, तो हम अगर करते हैं उसके आगे सिजदा करते हैं, जिस तरह हमने, ये असल में ये थी जो कह लें कि जो अस्तारा मलका थी और इसका जो बच्चा पैदा हुआ, जिसके बाद उसने अपने बच्चे से ही यानी अपने बेटे से, जो इसने कहा था कि सूरज की शुआओं से वो पैदा हुआ है ना, यानी मेरे ऊपर, तो असल में ये पीछे इसकी बात हो रही है, ये जो अस्तारा मलका है। तो हम इसको इससे तशबीह देते हैं, जैसे उसने ईस्टर नाम रख दी, इसका जो नाम था वो उसको हमारे खुदा यीशु मसीह के, क्योंकि ये इसका भी जब बेटा पैदा हुआ था तो उसने कहा ये मसीहा है या ये बचाएगा या ये करेगा, तो इसलिए हमारे मसीहा जो हमारा खुदा यीशु मसीह है, उसको ये जो बिदतें हैं या क्या कह लें, उसके साथ मिलाती हैं, गलत तालीमें जो है। तो इसलिए हमें किसी तरह से भी ये जो बुत परस्ती है, खुदा यीशु मसीह का बुत बना है या मुकद्दसा मरियम का है या किसी का भी आप बुत बनाते हैं, वो ना करें। ये देखिए, ये नमरूद उसका बेटा था, यही उसका शौहर था और ये अस्तारा मलका थी। तो इसलिए हम समझते हैं कि शायद ये मुकद्दसा मरियम की तस्वीर है या मुकद्दसा मरियम है, तो ये ऐसा नहीं है। ये पीछे इसके जो काम हो रहा है, ये जो सितारा मलका है, वो हो रही है। तो ये ना सिर्फ़ मतलब ये देखें, कहीं न कहीं हर उसमें मज़हब में कह लें या हर फ़िरके में ये इस तरह का एक कह लें कि देवी या देवता जो है वो बनाया गया है ना। ये हिंदुओं में भी है, ये बुद्धा में भी है। तो असल में उसके पीछे जो स्पिरिट है वो वही काम कर रही है, सितारा मलका की। तो इसलिए हमें जो है इस बुत परस्ती में किसी भी तरह नहीं पड़ना। खुदावंद को इससे नफ़रत है। ठीक है? तो अगर कहीं हम जब पड़ जाते हैं, तो खुदावंद देखिए ये कह रहा है कि जैसे मैं उसको यानी जो ज़िनाकारी करते हैं या ये उनको बड़ी मुसीबत में डालूँगा, बल्कि ये जो अ, यानी बुतों को तो इनको जो इनके पीछे स्पिरिट है उनको तो सज़ा मिले ही मिलेगी। लेकिन हम जो अगर उसके उनके पीछे लग जाते हैं, तो फिर हम भी उसी सज़ा के कह लें कि खुदावंद कह रहा है मैं उनको भी फिर सज़ा दूँगा, है ना? तो इसलिए हम जो हैं खुदावंद के लोग जो हैं कोशिश करें कि ये ऐसे-ऐसे काम जो हैं वो ना करें, हरामकारी, ज़िनाकारी हमारे अंदर ना हो, है ना? तो ये कल हमने जो कह लें कि खुदावंद को शिकायत थी, आज हम इसका जो इलाज है या माफ़ी जो है
اصلاح جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہی کے پاس ہے، وہ اس کے سوا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہماری ساری مشکلوں کا، پریشانیوں کا حل ہے نا؟ تو خداوند کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں کہ میں کیا کروں گا، اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں ان کو بھی وہ خداوند جو ہے سزا دے گا۔ تو خداوند جو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم یہ کیا کہتے ہیں حرام کاری میں پھنس گئے ہیں، یا کہیں زنا کاری یا بت پرستی میں پھنس گئے ہیں، تو انہیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے تاکہ وہ مصیبت سے بچ سکے۔ یہ خدا کی مرضی نہیں کہ ہم بیمار ہوں، پھر بھی خدا بیماری کو اجازت دیتا ہے، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں سے یا جب بیماری آتی ہے تو ہم حوالہ ایک پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری نجات کے لیے ہوتی ہے، تاکہ کہیں ہم نے کوئی ایسی کوئی گناہ کیا ہے، کوئی گندی بات ہے ہمارے اندر، کوئی غلطیاں کی ہیں، تو ہم اس پیریڈ میں اس بیماری میں اس سے معافی مانگے، تاکہ خداوند جو ہے ہمیں شفا دے، خداوند جو ہے ہمیں نجات دے۔ جس طرح خداوند کا ایک کلام ہے کہ جہاں لکھا ہے کہ وہ تندرستوں کے لیے نہیں آیا بلکہ بیماروں کے لیے آیا خداوند جو ہے۔ تو آگے ہی چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بیمار کن کو کہہ رہا ہے؟ جن کے اندر یہ کہہ لیں حرام کاریاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، ہے نا؟ ساتھ وہ جسمانی شفا بھی دیتا ہے، لیکن اصل میں بیمار خداوند ان کو کہہ رہا ہے جن کے اندر ایسی ایسی جو بدروہیں ہیں، اسپرٹ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو خداوند کیا ہے؟ ان کو رہا کر رہا ہے، ان کو جو ہے ان سے مکتی دلا رہا ہے نا؟ تو اصل میں خداوند جو ہے ان لوگوں کے لیے آیا ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے جب کہیں کوئی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا بیماری آ گئی ہے، تاکہ کیا ہو؟ ہمیں نجات ملے۔ یہ بیماری جیسے کل ہم نے شاید ایک آیت پڑھی تھی کہ جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں، پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں، تو جس طرح اسرائیلی قوم جو تھی، جب ان کا جو وہ دن تھا مناتے تھے کفارے کا دن، جب سردار کاہن جو تھا وہ اندر وہ جایا کرتا تھا تو قربانی چڑھانے کے لیے، اور عہد کا صندوق جہاں پڑا ہوتا تھا، تو باہر جو تھے اسرائیلی قوم اس وقت بڑے ڈر اور خوف میں اور رو رہی ہوتی تھی، توبہ کر رہی ہوتی تھی، ہے نا؟ معافی مانگ رہی ہوتی تھی کہ خداوند ہمیں جو ہے معاف کرے۔ اور تو ہمارے اندر بھی وہی ایک ڈر اور خوف خداوند کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہولی کمیونین لینے سے پہلے ہمارے چرچ میں یعنی ہولی کمیونین روز نہیں دی جاتی ہے نا، وہ ایک مہینے کے بعد دیتے ہیں، اور 4 دن پہلے روزے میں اور دعا میں ٹھہرتے ہیں، اور صبح اور شام جیسے کہہ لیں وہ جیسے کہہ لیں چرچ ہوتا ہے، یعنی مقدس مجمع ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اسرائیل میں دیکھتے ہیں، اسرائیل کی اس کو خداوند نے بولا تھا ہے نا کہ صبح بھی مقدس مجمع ہو اور شام کو بھی، ہے نا؟ یعنی وہ اکٹھے ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم بھی جب یہ پاک شراکت لیتے ہیں، یعنی یہ خدا کا پاک بدن ہے، پاک خون ہے، جب ہم اس کو لیتے ہیں تو نہ صرف یہ ہمیں پاک کرتا ہے بلکہ ہم پہلے جو ہے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کریں کہ خداوند تو ہمیں معاف کر، کہیں پہ بھی ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، کوئی اندر ہمارے ایسی گندی بات ہے، تاکہ ہم نجات پائیں۔ تو اس لیے خداوند جو ہے کہیں پہ بھی ہمارے اندر کوئی برائی ہے یا بیماری ہے تو خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں شفا دے، ہمیں نجات دے، ہمیں رہائی دے، ہے نا؟ تاکہ کیا کریں؟ ہم خداوند کی حضوری میں پھر پورے داخل ہو سکے۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں ہم گندے ہیں، کہیں داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے نا ہمارے اوپر۔ تو
इसका हल जो है, एक आयत हम पढ़ते हैं। सोनिया आप निकालना खुरूज की किताब, कूच की जो किताब है उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है। खुरूज की किताब उसका 15 बाब 26 आयत में कि हमें जो है किस तरह खुदावन से माफी मांग सकते हैं या किस तरह हम पाक हो सकते हैं। खुरूज की किताब, सोनिया है हमारे साथ? हाँ जी सिस्टर जी। कूच की जो किताब है उसका 15 बाब 15। हाँ जी हाँ जी, उसकी 26 आयत 26। 26। हाँ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾਂਗਾ। हाँ जी। किंजा आप भी पढ़ोगे खुरूज की किताब उसकी हाँ जी। 15 बाब और 15 बाब 26 आयत। 26 या 25? चलें 25 से पढ़ लो। उसने खुदावन से फरियाद की, खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। मैं सही पढ़ रही हूँ ना? वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगा के खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझको कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। फिर वो एलीम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो इसका हाल जो है, जो अगर हमने बुराई हो गई या अगर हम ऐसे बुत परस्ती में पड़ गए हैं, फंसे हुए हैं या कुछ भी हम बुरा काम जो है कर रहे हैं, गलत तालीमों में फंस गए हैं, तो खुदावंद कह रहा है कि उसका हल एक ही है कि अगर तू, यानी उनको भी वहां पे शरीयत एक किस्म की कहले मिली थी कि अगर वो जो काम खुदावंद ने एक किस्म का कह लें कि कहा था कि नहीं करने, है ना, तो अगर खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे तो क्या होगा कि खुदावंद ने कहा था कि मैं जो बीमारियां जो थी जो मिस्रियों पे भेजी थी खुदावंद ने, और वो हमें सबक पता है ना, कि कौन-कौन सी जो बीमारियां थी वो आई थी मिस्रियों के ऊपर, कौन-कौन सी आफतें आई थी, है ना। तो खुदावंद कह रहा है कि वो फिर हमारे ऊपर नहीं आएंगे, यानी जो हम कह लें मसीही हैं या रूहानी तौर पे इसराइली कौम है, तो खुदावंद ने कहा था कि वो इसराइलियों के फिर नहीं आएंगी, है ना। जिस तरह हम ये जो अभी हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा कि जो उस तरह के काम करेंगे जो ये बुत करते हैं या बुतों की जो असल थे, जैसे हमने देखा कि नमरूद और अस्तारा और ये इज़बल जो थी, इज़बल का कल शायद हमने थोड़ा पढ़ा था कि इसने जब उसको नबूत को मरवाया था तो उस संसार किया था और उसके जो उसका खून जो था कुत्तों ने चाटा था। तो एलिया जो नबी था खुदावंद का, उसके ज़रिए खुदावंद ने इस इज़बल जो थी एलिया नबी के ज़रिए खुदावंद ने नबूवत करवाई थी कि जिस तरह इसका खून चाटा गया, उसी तरह इज़बल जो थी उसका भी खून जो है वो कुत्ते चाटेंगे, है ना? तो इसलिए ये जो कह लें कि ये इज़बल जो थी,
जो सजा उसको मिली, अगर हम भी उसके काम करेंगे उस जैसे, तो खुदावंद ये अभी जो हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा कि उसके जो फर्जंद है, जो उसके पीछे लगे हुए हैं, इस तरह जो बुतों के पीछे लगे हुए हैं, उनके साथ भी वैसा ही खुदावंद कह लें कि उनके फर्जंदों को भी वही सजा मिलेगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें वैसी सजा ना मिले, जैसे हमें पता ही है कि इनकी सजा जो है वो आग की झील है, वो जहन्नम की आग है। ये जो बुत परस्ती करते हैं या गैर कौमें जो हैं, वो आग की झील में या कह लें जहन्नम में जो है वो जाएंगे, क्योंकि जो भी खुदावंद का नाम नहीं लेता, खुदावंद को छोड़ के इन महबूदों के आगे सजदा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी जगह जो है वो आग का झील है, आग की झील है ना? तो इसलिए खुदावंद यहाँ पे अपने लोगों से भी बात कर रहा है कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारी भी जगह वही होगी, है ना? लेकिन आगे खुदावंद जो है वो कह रहा है कि अगर तुम जिस तरह के कुछ लोग इसमें जो कलीसिया में चर्च में थे, खुदावंद ने कहा कि आ, जो यानी उसकी तरह के काम नहीं कर रहे, है ना? ये जो क्या है 25 आयत मेरा जिसमें वो क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी उनके पास है, यानी जितनी भी उनके पास स्टडी है, जितना भी खुदा उनके बारे में वो जानते हैं, जितना उनको पता है, उसको क्या करें, थामे रखें उसको। यानी जैसा ये इजबल की स्पिरिट क्या थी, गलत तालीमें जो थी फैलाती है गुमराह करती है, लेकिन खुदा यहाँ पे कह रहा है कि जो कुछ भी तेरे पास है उसको थामे रख, है ना? ये इस कलीसिया से बात कर रहा है कि मैं और बोझ तेरे ऊपर नहीं डालता, लेकिन जो कुछ तेरे पास है मेरे आने तक उसको थामे रख, उसको ना छोड़ना। यानी जितना भी वो खुदा यीशु मसीह के बारे में जानता है, या जितनी तालीम उसको सच्ची तालीम उसके पास है, क्योंकि गलत तालीमों में जब हम पड़े होते हैं तो हम फिर खुदा के जो कह लें पाकीज़गी है उसके कद के अंदाजे तक नहीं पहुंच सकते, हम खुदावंद के उतने ज्यादा करीब नहीं जान सकते। लेकिन हमें खुदावंद का कह लें पता होता है खुदावंद की खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि वो ही निजात देता है, वो ही मुक्ति देने वाला है ना? तो इसलिए खुदावंद कह रहा है कि तू उसको थामे रख कि मैं तेरा निजात देंदा हूं या मुक्ति देने वाला हूँ, है ना? ये बाकी के जो लोग जो उसके पीछे नहीं लगे हुए थे तो खुदावंद उनको कह रहा है कि फिर जो अगर जो गालिब आएंगे उनको मैं क्या करूंगा कि इख्तियार दूंगा कि वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करें, है ना? तो लोहे के आसे के बारे में हमने थोड़ा सीखा था कि ये जो अदल इंसाफ से फैसले जो हैं वो करना है, या सच्ची जो तालीम है खुदावंद की उसके ऊपर चलना जो है, ये लोहे के आसे को पेश करता है ना? तो खुदावंद कह रहा है फिर मैं उनको जो इख्तियार है वो दूंगा, है ना? और मैंने ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसलिए खुदावंद इस कलीसिया के साथ हमने देखा कि इस कलीसिया के जो लोग थे वो मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी जो मोहब्बत थी वो कह लें कि ज़िनाकारी के ऊपर जो थी, उनकी जो जिनसी या जिस्म की ख्वाहिशें थी उनके ऊपर हावी हो गई थी, और वो अपने जिस्म की ख्वाहिशों को जो थे वो पूरा करना शुरू हो गए थे, और उनकी जो मोहब्बत थी वो वैसी नहीं थी रही, वो गलत तालीमों में फंस गए थे, वो बुत परस्ती में, हरामकारियों में पड़ गए थे। लेकिन खुदावंद ने कहा कि अगर तुम तौबा करो और अगर तुम मेरे हुक्मों पे अमल करो है ना? ये इलाज है, ये हाल है कि अगर अभी जो हमने खरूज की किताब में आयत पढ़ी कि अगर हम उसके हुक्मों पे अमल करेंगे तो ये बीमारियां या जो मुसीबतें जो आफतें मिस्रियों पे आई थी, जैसे इस कलीसिया के को खुदावंद ने कहा कि मैं बड़ी मुसीबत उन पे लाऊंगा, तो फिर वो बड़ी मुसीबत जो है, जो कि हमें पता है कि वो जो 7 साला दौर शुरू होगा मुसीबतों का, तो खुदावंद कह रहा है कि फिर मैं तुझे उसमें नहीं पड़ने दूंगा अगर हम तौबा कर लेंगे या खुदावंद यीशु मसीह को अपना
कह लें नजात दहिंदा कबूल करेंगे और पाकीज़गी में चलेंगे, है ना? तो ये लेकिन ये जो कलीसिया थी कुछ ऐसे लोग थे जो शैतान के फंदे में फँसे हुए थे और शैतान की गहरी बातें, जिस तरह हमने अपना सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह गहरी बातें या अपने गहरे मुकाशफत किन पे खोलता है, जो उसके करीब जाते हैं। तो शैतान के भी जो करीब जाता है, उन उनके साथ वो अपनी गहरी जो बातें हैं या गहरे जो वो करता है। तो इसलिए जो ज़्यादा उसमें फँसे होते हैं, ये गहरी बातें यानी या क्या लें ये उन लोगों की बात हो रही है ना? तो उनकी जो मोहब्बत है, उनके जो कह लें खुदावंद से वो दूर चले जाते हैं, तो उनके नेक काम जो हैं जो कुछ वो करते हैं, उनका फिर कोई अजर नहीं है ना? लेकिन खुदावंद कह रहा है कि जो उसकी तालीम पे नहीं अमल करे, खुदावंद उनको बचाएगा और खुदावंद कह रहा है कि उनके जो कुछ तेरे पास है, जितना इल्म जैसे कह लें तेरे पास है, उसको थामे रख। और इसका जो रिवार्ड है जब हम तौबा करेंगे और कह लें गलबा पा लेंगे, फ़तह पा लेंगे, तो इसका जो कह लें अजर है हमें मिलेगा, जो गालिब आए और जो मेरे कलाम के माफ़िक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूँगा और लौह के आसे से यानी हुकूमत करेगा, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है और सुबह का सितारा जो है वो हमें पता है कि वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है ना? खुदावंद यीशु मसीह जो है क्या है? सुबह का सितारा है, कि चमकता हुआ सुबह का सितारा है ना? खुदावंद यीशु मसीह जो है किंजा आप निकालना फिलिपियों 8 3 बाब उसकी 8 आयत। फिलिपियों 3 बाब उसकी 8 आयत। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सुबह का सितारा है। मैं ढूंढ रही हूँ, एक मिनट। ये मुकाशफा के कह लो पीछे ही थोड़ी-थोड़ी जो छोटी-छोटी किताबें हैं ना, इफ्सियों के बाद है। इब्रानियन से पहले हाँ, ओके, मिल गया फिलिपियो। अच्छा। कौन सा चैप्टर? 3 बाब उसके 8 आयत। किंजा बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूं। आमीन। हाँ जी। तो अगर हम यानी जैसे कह लें ये बाकी जो चीजें हैं यानी दुनिया की चीजें जो हैं उनके ये खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर इस तरह की है कि बाकी चीजों को क्या हम समझे? कूड़ा समझे। अ, सोनिया आप भी पढ़ना पंजाबी में। सोनिया है हमारे साथ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ? ਫਿਲਿਪੀਆ 3 ਦਾ 3 ਦਾ 8 ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕੂੜਾ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। आमीन। आमीन। हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। यानी इस कलीसिया ने के बारे में कहा खुदावंद ने कि ये इनके अंदर मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत उनकी क्या हुई थी? दुनियावी चीजों के लिए, जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए, दौलत के लिए, इज्जत के लिए यानी क्या हुआ? उनकी मोहब्बत जो थी वो कह लें उसमें बदल गई थी, खत्म हो गई थी और वो बुत परस्ती में, गलत तालीमों में फंस गए थे, है ना? लेकिन अगर हम खुदावंद कह रहा है कि इस तरह की मोहब्बत जो है खुदावंद के साथ रखेंगे कि दुनिया की चीजें जो हैं वो हमारे लिए कूड़ा उनको हम समझेंगे, है ना? तब जो है खुदावंद जो है हमें वो अजर जो है हमारा रिवार्ड जो है वो हमें मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम
यानी उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो कह लें कि जिस जगह के लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है, या जैसे वो खुदावंद जो है, खुदावंद के बारे में लिखा है, हमने मेरा पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वो लोहे के आसे से क्या करेगा, हुकूमत करेगा। तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ तब ही कह लें कि हो सकते हैं अगर हम भी इस दुनिया की चीजों को, इस दौलत को, इज्जत को, यानी ये जो जिस्म की ख्वाहिशें जिनसे हम कहते हैं कि हमें तसल्ली मिलती है या हमें हम खुश हो जाते हैं, है ना, इनको जब हम कूड़ा समझेंगे, इस तरह की मोहब्बत जो है हम अगर अपने खुदावंद यीशु मसीह से करेंगे, तब हमें जो है वो रिवार्ड जो है या अजर जो है हमें आसमान पे मिलेगा। और हमने थोड़ा पीछे सीखा था कि अजर ना सिर्फ हमें आसमान पे जाके मिलेगा, बल्कि उसके थोड़ा थोड़ा जो कह लें कुछ कुछ हिस्सा है वो जमीन पे भी हमें मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन तब जब हम इस तरह की मोहब्बत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ करेंगे, जिस तरह ये पालूस रसूल कह रहा है कि वो कर रहा है कि चीजें, बाकी चीजें क्या है उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई जैसे कह लें कीमत नहीं है खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत की खातिर या उसको हासिल करने की खातिर। हम जो कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, जिस्मानी काम जो है, झूठ बोलना, शराब पीना, कह लें हरामकारी करना, है ना, गुस्सा करना, नाराजगी करना, किसी से हसद करना, किसी को माफ नहीं हम करते, है ना, ये हमारे एक अंदर बड़ी जैसे कह लें कि हम सब में ही होता है, हम किसी को माफ नहीं कर सकते। तो अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, है ना। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, जलन है हमारे अंदर, तो इसका मतलब है हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसकी खूबियां हैं, ये शैतान की हैं, है ना। तो अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम उसको हासिल नहीं कर सकते। जैसे एक ये आगे ही शायद लिखा हुआ है कि हम जो है खुदावंद यीशु क्या कह लें, इनाम की खातिर दौड़े चले जा रहे हैं। अब पालूस रसूल कहता है ना, ये इसी चैप्टर के अगले 13-14 वर्ष में लिखा हो कि हम दौड़े चले जा रहे हैं, हम चीजों को क्या कर रहे हैं, ये दुनियावी चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत को, जिनको कह लें घरों से, उसकी चीजों से, गाड़ियों से, बंगलों से मोहब्बत होती है कि हाँ मुझे ये भी मिल जाए, यानी या कपड़ों की होती है, मेकअप की होती है, औरतों को कह लें, है ना, या और ऐसी चीजें जो है, दुनियावी चीजें जो है, अगर हमारी मोहब्बत इनके साथ है तो हमारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुश्मनी है। ये एक जैसे कह लें हम सीख रहे हैं, क्योंकि पालूस रसूल क्या कह रहा है कि मैं इन चीजों को कूड़ा जानता हूँ। कूड़ा क्या होता है, जो हम बाहर फेंक देते हैं, है ना, गार्बेज जो है उसको क्या करते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद कह रहा है कि अगर तुम मुझसे इस तरह की मोहब्बत करते हो, तब जो हमें जो अजर है वो मिलेगा आसमान के ऊपर, यानी जो हमारी जगह है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगी। खुदावंद यीशु मसीह को, जिस तरह आपको पता है कि शैतान ने क्या कहा था, जब हैकल के किंगरे पे ले गया तो उसने कहा तू मुझे नहीं, हैकल पे नहीं, जब उसने कहा था कि तू मुझे सिजदा कर, है ना, तो मैं सारी ये शान शौकत जो है दुनिया की, ये तुझे दे दूंगा। उसने, शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को कहा। तो हम भी ये दुनिया की अगर शान शौकत चाहते हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमारा आसमान पे अजर कोई नहीं है ना। तो हमें जो है आसमानी चीजों की तलाश में रहना है, जिस तरह पालूस रसूल कहता है कि मैं इनको कूड़ा जानता हूँ, मुझे जो इनाम, मुझे मेरा वो जो ताज है या जो अजर है, कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठ के क्या करेंगे, लोहे के आसा से हुकूमत करेंगे। वो जो इख्तियार हमें दिया जाएगा, उसको पाने के लिए हमें ये दुनिया की चीजें जो है उनको कूड़ा जानना है, क्योंकि हम तो उस इनाम की तरफ दौड़े जा रहे हैं। फिर हमें वो अजर जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देगा, उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं, दुनिया की रंगीनियों में फंसे हुए हैं, तो फिर हमारा आसमान पे अजर जो है वो नहीं है। वो अजर हम कह लें उस यहीं पे पा लिया, शैतान से पा लिया, तो फिर आसमान पे हमारा नहीं होगा। फिर उसी के साथ कह लें हिस्सा हमारा होगा, जैसे कि इस
24 और 23 वर्ष में कहा कि जो उसके फर्जंद हैं कह लें बाल के या सतारा के या ये जो इजबल की स्पिरिट है, तो फिर हमें भी इनके साथ ही जगह जो है मिलेगी। लेकिन हम अपने यीशु से मोहब्बत करते हैं, अपने खुदावंद बाप से मोहब्बत करते हैं, तो हमारे लिए ये चीजें हमें मिल गई हैं, ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। इसके लिए कोई हम जैसे कह लें दुआएं करें कि नहीं नहीं खुदावंद तू मुझे एक अच्छा बंगला दे दे, मुझे कोई ऐसी जो भी हमारे पास चीज नहीं है फर्ज करें, है ना, वो ठीक है हमें दे सकता है खुदावंद। जिस तरह हमारे नबी पैगंबर जो थे, अय्यूब जो था, दाऊद जो था, वो बहुत अमीर अमीर थे, है ना, बहुत दौलतमंद थे, इब्राहिम था, वो हमें दे भी सकता है। लेकिन उनको कहीं हमने ये नहीं देखा कि वो इससे मोहब्बत करते थे या वो उसके लिए दुआएं करते थे कि जी हाँ हमें दौलत चाहिए। बल्कि एक जगह इब्राहिम का लिखा है कि कौन उसको दे रहा था, तो उसने वो नहीं थे लिए वो इनाम जो था, उसने कहा कि कहीं कोई ये ना कहे कि तूने मुझे दौलतमंद बना लिया। हमें दौलतमंद कौन बनाए? खुदा ही बनाए। हम उसके लिए दूसरों की मदद ना लें, इंसानों की जो है, खुदावंद हमें कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, या दौलतमंद भी बना सकता है। लेकिन हमारे अंदर मोहब्बत किसकी हो? पहला दर्जा खुदावंद यीशु मसीह का हो, पहला दर्जा हमारे खुदावंद बाप का हो, तब हमें ये जो दौलत है वो भी मिल जाएगी। तो ना भी दे तो तब भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई घर कोई वो नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसके पास तो सर धरने की जगह नहीं थी, है ना। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी जैसे कह लें कि वो दौलतमंद नहीं थे, वो इधर-उधर फिरते रहे, बल्कि एक जगह लिखा है, यानी उनके कि उन्होंने टैक्स देना था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा उसमें से मछली पकड़ और उसके मुँह से जो निकलेंगे पैसे, वो मेरा भी टैक्स पे कर और अपना भी करो, शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। तो इसलिए हम हो भी सकते हैं, लेकिन अगर खुदावंद हमारे दिलों और गुर्दों को जाँचने वाला खुदा है, जैसे इसी चैप्टर में लिखा हुआ है ना, तो अगर हमारी प्योरिटी जैसे कह लें ये है, पहला दर्जा जो है वो दौलत है या दुनिया की शान-ओ-शौकत है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम यीशु से उस तरह की मोहब्बत नहीं करते। तो जो मोहब्बत करते हैं उनको उनका अजर जो है मिलेगा वहाँ पे। और मेरा ख़्याल है कि जहाँ जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने यीशु से मोहब्बत करते हैं। हमें उसकी ज़रूरत है, हमें हर हाल में जैसे कह लें कि हर पल में अपने यीशु की ज़रूरत है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना? ईमान है मेरा और आप सब इसमें जैसे कह लें हम एक रूम में कह लें बंध के कह सकते हैं, और ज़रूर आप इन हवाओं में, इन फ़ज़ाओं में इकरार करें कि हम अपने यीशु से मोहब्बत करते हैं, हम अपने यीशु को पहला दर्जा देते हैं, ताकि शैतान को कह लें पता हो, सुन ले, ठीक है? तो आप ज़रूर हवाओं में, फ़ज़ाओं में बोला करें कि नहीं मैं अपने यीशु को मोहब्बत करती हूँ। मुझे ये इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो है, ये दूसरे नंबर पे आती है। अब मेरा यीशु मुझे दे या ना दे, मैं अपने यीशु को कभी नहीं छोड़ूँगी और इन चीज़ों के पीछे या इस बुत परस्ती के पीछे हरामकारी जो है या इसमें नहीं पड़ूँगी। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। मुझे और आपको खुदावंद ये फ़ज़ल दे, उसके फ़ज़ल के बगैर, उसके ज़ोर के बगैर हम उस पे फ़तह नहीं पा सकते, गलबा नहीं पा सकते। तो इसलिए ज़रूर दुआ में खुदावंद के साथ टाइम गुज़ारें, ताकि हमारे अंदर वो एक ज़ोर आए, ताकत आए, ताकि इब्लीस के सर को रोज़ 1-1 सेकंड में हम कुचल सकें। जिस तरह आप शिकस्त दे के कह लें दुश्मन की फ़ौजों को इस मीटिंग में आते हैं, या अपने-अपने चर्च जाते हैं, या दुआ करते हैं, या गीत गाते हैं अपने घर में भी, तो असल में उस वक़्त आप दुश्मन को अपने पाँव तले कुचल रहे होते हैं। तो खुदावंद हम सबको ये कह लें रोज़ ही फ़ज़ल दे कि हम उसके पाँव को उसको अपने पाँव तले कुचलते जाएँ। गॉड ब्लेस यू। बैक टू अब इतने सारे थे, कौन है जो एंड करेगा? जी, अंजना मेरा ख़्याल आप अंजना है हमारे साथ? बैक टू अंजना। मेरी आवाज़ आ रही है?
हाँ जी आ रही सिस्टर जी लास्ट पे सिस्टर सनिया होना दी है ओके जी हाँ जी सिस्टर सनिया जी बाजी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, बार बार मोबाइल बंद हो रहा है। ओके जी अगर Sorry. किसी का भी खुदाम का रूह बाहर रहा है तो वो प्रेयर कर सकते हैं। कोई भी खुदाम की शुक्रगुजारी करना चाहता है तो खुदाम आपके पास मौका है कि खुदाम की शुक्रगुजारी करें। आज के कलाम के लिए खुदाम ने आपके दिल को टच किया है। जी सोनिया। जी सोनिया आप करें प्रेयर। हाँ जी सिस्टर जी एक मिनट बस तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद रोज मैं अपना तो कहूंगी कि रोज जोर देता है, ताकत देता है, तभी मैं जैसे मैं कल रोज उस पे फतह पा के इस मीटिंग में आ सकती हूँ या चला सकती हूँ। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि फतह पे फतह पाते जाएं तो जरूर दुआ में ठहरें। जी सोनिया गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 Lord. Hallelujah. Lord. Shinda bora 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 siri biri kara bara 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 shara bara shara bara shara bara shara. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Lord Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. खुदा दे तारीफ हो Lord Jesus दे धन्यवाद खुदाबंद दे आज दे दिन वास्ते खुदा दे धन्यवाद Lord Jesus खुदाबंद जो सानू इकट्ठे कीता Lord Jesus जो सानू अपनी हजूरी दे विच लेके आंदा खुदाबंद दे धन्यवाद Lord hallelujah Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. खुदा हमारे बीच तो इस समय वास्ते खुदा तुसानू संभाल के रखिया Lord Jesus दे धन्यवाद करदे Lord hallelujah. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. खुदा मन तेरी प्यार तेरी मोहब्बत वास्ते oh Lord Jesus hallelujah. Lord Jesus दे धन्यवाद खुदा तू हर वक्त साडे अगे अगे होके साडी गवाही करदा साडी जंग लड़दा Lord Jesus दे धन्यवाद oh Lord hallelujah. Oh Lord Jesus तो हर वक्त में मते बड़ाई दे जोश खुदा बनो Lord Jesus hallelujah. खुदावन तो उच्चा ते महान ते पवित्र खुदा Lord Jesus hallelujah 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 Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. खुदावन इस ग्रुप ने हर एक मेंबर नु खुदावन ते लहू च छुपा दिंदियां Lord Jesus. Hallelujah. खुदावन तू हर एक नु खुदावन अपने पराए छुपा के रखो Lord Jesus. Hallelujah. खुदावन ताकि कोई भी शैतान या ताकत शैतानी अखां नु देख तक न सकरा Lord Jesus. Hallelujah. हर शैतान दी ताकत खुदावन जो हनेरे दी ताकत खुदावन दे यीशु मसीह दे नाम च कैंसल कर दिंदी खुदावन जो इस ग्रुप के खिलाफ काम कर रही है Lord Jesus in the name of Jesus hallelujah oh yes Lord Jesus खुदावन तेरी तारीफ हो Lord Jesus hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. खुदावन
ਓ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਚ ਦੇਖਣ ਚ ਬੋਲਣ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਫਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਜਾਈਏ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ Oh yes, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਬੜਾਈ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 Lord. Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਓ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਹਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ Lord Jesus ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ Lord Jesus ਸਾਡੇ ਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ Lord Jesus ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੂਸਾ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚਮਕਾ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚਮਕਾਵਾਂਗਾ Oh yes Lord thank you Jesus Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ praise the Lord praise the Lord praise the Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ Lord Jesus Oh Lord Jesus ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord
जीसस हालेलुया खुदावन हनेरे दियां हर एक ताकतां नूं खुदा मैं ते यीशु मसीह दे नाम च खत्म कर दिंदियां यीशु के हालेलुया लॉर्ड जीसस दी हनेरे नूं नहीं सगों चानन नूं बिलोंग करदे आ ओ यस लॉर्ड जीसस इन्हां हनेरे दियां ताकतां दा साडे ते कोई अधिकार नहीं है लॉर्ड यीशु के जीसस हालेलुया Yes, इन्हां Lord सारी Jesus, ताकतां में ते hallelujah. यीशु मसीह दे नाम च कैंसल कर दिंदी इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया खुदावन अपने घरां दे विच खुदावन हर एक फैमिलियां नूं खुदावन अपने घरां नूं खुदावन इन्हां दियां हर एक घरां नूं खुदावन लॉर्ड जीसस ते लहू च लपेट दिंदियां लॉर्ड जीसस यीशु के हालेलुया हर एक कोने कोने ते खुदावन ते लहू लगा दिंदियां लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस Yes, Lord. खुदावन Yes. खुदावन ओ लॉर्ड जीसस घर च खुदावन जो भी काम होवे खुदावन तेरी मर्जी अनुसार होवे ओ लॉर्ड जीसस यीशु के नाम हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन खुदावन तू साडे दिलां नूं तैयार कर दियो लॉर्ड जीसस ती सिर्फ तेरी मर्जी नूं अपनी जिंदगी च पूरा करिए लॉर्ड जीसस Yes. हालेलुया Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Shara bara 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 bara. Shinde bora 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 siri biri kara bara 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 bara. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. The तारीफ Lord Jesus. The धन्यवाद खुदावन Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. खुदावन Oh Lord Jesus, तेरी तारीफ होवे तेरा धन्यवाद होवे खुदावन Oh Lord Jesus, Hallelujah. Oh Lord Jesus, खुदावन इसी तरह खुदावन साडी दिल चो साडी जुबान तो खुदावन तेरी महिमा दे शब्द निकलते रहना Lord Jesus, Hallelujah. Oh Lord Jesus, साडे हाथ हमेशा तेरी आराधना वास्ते उठते रहना Lord Jesus, Hallelujah. Oh yes, Lord, thank you, Jesus, Lord, Hallelujah. Hallelujah, Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, Lord, खुदावन तेरी तारीफ Lord Jesus, thank you Lord खुदावन Lord Jesus तेरा धन्यवाद खुदावन तू साडा महान ते जिंदा खुदा Lord Jesus साडी सारी दुआवां नु सुनदा Lord Jesus तेरा धन्यवाद खुदावन Lord Jesus खुदावन तेरी तारीफ होवे तेरा धन्यवाद होवे Lord Jesus तू साडी आज दी दुआवां नु सुनिया Lord Jesus तेरा धन्यवाद कर दे Lord thank you Jesus खुदावन तेरी तारीफ होवे तेरा धन्यवाद होवे खुदावन ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ praise the Lord hallelujah आमीन आमीन। praise the Lord अब हमारे खुदा उनका फजल उसकी तसल्ली उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Thank you. Hallelujah. हालेलुया। मैंने देखा है कि खुदावन ने हमें जो है जो भी जहाँ कहीं हम थे हमें खुदावन ने फतह जो है वो बख्श दी है क्योंकि मैंने इस तरह देखा है कि जैसे ऐसे आसमान पे एक जैसे कहले अपने इस ग्रुप को एक ब्राइड की तरह देखा और मैंने देखा कि वाइट लिबास जो है पहना हुआ है सिर्फ ज्यादा मतलब मैंने जैसे कहले ऊपर का हिस्सा जो है वो देखा है सर देखा है और जैसे कहले कि बाजू जो है वो देखे नीचे वाला नहीं तो मैंने देखा कि जो एक क्राउन जो है ताज जो है पहना हुआ है और वो ताज जो है वो चमक रहा है और हमने इसमें देखा इसी कलीसियों में इन चर्चों में कि जिन्होंने गलबा पाया था जो फतहमंद हुए थे उनको ताज जो था वो पहनाया गया था तो इसलिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने इस छोटे से ग्रुप को हमें जो है खुदावन ने फतह से बढ़कर जो गलबा है वो बख्शा है तो इसलिए जहाँ कहीं भी हम कोई भी हमारी जिंदगी में कोई जो रुकावटें पैदा हो रही हैं कि वो हमें यीशु के पास जाने नहीं देती यीशु से उस तरह की मोहब्बत करने नहीं देती खुदावन ने आज हमें वो फतह वाला जो फतह का जो एक गलबा है वो हमें बख्शा है और मसा जो है हमारे ऊपर अंडेला तो इसलिए मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन जो है हमें वो जोर वो ताकत बख्श रहा है तो आप फिक्र ना करें जो भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है वो तो दुल्हन के ऊपर चलनी ही चलनी क्योंकि दुल्हन क्या है इस वक्त जमीन पे रहते हुए अपने आप को एक किस्म की जज कर रही है या सफरिंग में से गुजर रही है जिस तरह हमारा खुदा यीशु मसीह गुजरा था
तो इसलिए हमें इस मुसीबत में से, तंगी में से, जो भी जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, वो गुज़रना पड़ेगा। यही हमारी तैयारी हो रही है ना? और जो दुल्हन है, अगर वो यहाँ पे ही मुसीबतें या अपनी जो भी होता है वो सह रही है, तो इसका मतलब है कि वो तैयार हो रही है ना? जिस तरह अपनी जो उसके अंदर गंदगी है, नापाकी है, उससे निजात जो है वो मिल रही है। तो फिर अगर क्या कहते हैं, हम इस वक़्त सफ़रिंग में से गुज़र रहे हैं, तो हमें वो बड़ी मुसीबत में उससे हम बच जाएँगे। ठीक है? तो इसलिए खुदा का शुक्र हो कि आप जो भी कुछ आपके दर्द है, कोई बीमारी है, कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, उसमें से आप गुज़र रही हैं, तो उसमें से खुदावंद का कह लें शुक्र करें कि खुदावंद तू मेरे साथ है, तू मुझे इसमें से निकाल लेगा, तूने फ़तह जो है बख्श दी है। तो गॉड ब्लेस यू। अगर किसी और ने कुछ कोई टेस्टिमनी या कुछ आपने शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओके, चलें ठीक है। अगर किसी को कोई खुदा ने आपको टच किया है या आपके साथ कोई बोला है या कलाम में से या रोया देखी है तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हम फिर मीटिंग को बंद करते हैं। चलें ठीक है। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। हाँ जी सिस्टर जी। जी, जी सोनिया। हाँ जी, मैं यही शेयर करना ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। जो हमारी एक डिजायर होती है और कलाम में लिखा हुआ है कि जो उसके दिल के क्या कहें मर्जी के मुताबिक हम दुआएं करते हैं वो तो वो जरूर ही सुनता है। तो इसलिए खुदा उनका शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू सोनिया। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट जी सारे।